Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from Dip Scroll Bag. In today's lecture, we are continue the reading of SPL Chapter 1, Role of Indian Constitution. In previous videos, we have read about the what is the Indian Constitution, why do we need it, and how it was drafted, and we have also read about the preamble of Indian Constitution, what is written in the preamble of Indian Constitution, and we have also read about the features of Indian Constitution and the parliamentary form of government of India. So we have read about it, and in today's lecture we are going to discuss regarding the fundamental rights which is given in our constitution. So first of all, we will come to know the meaning of fundamental. What are the fundamental rights? Fundamental rights are the basic rights which are guaranteed to citizen for his holistic growth of individuals. So fundamental rights are the basic rights which are guaranteed to the citizen by the constitution. And holistic means uh, full, yeah, means yeah, in all aspects, the growth of individual. So we can say the fundamental rights are the rights which are guaranteed by the constitution for the growth, development and growth of an individual in all aspects, whether it is economic, social and political. All aspects are included in this uh, rights. So let us the constitution lays the lay down effective and clear procedure for the enforcement of fundamental rights. So कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली सेड, उसमें बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बताया कि इसका क्या प्रोसीजर है और इसका कैसे आपने लागू करना है. इन्फोर्समेंट मीन्स लागू करना है फंडामेंटल राइट्स को. So in this, what are the different fundamental rights provided in our constitution? We are going to read about it. So classification of fundamental rights: there are 6 fundamental rights given to the citizen which guarantees the ideals of equality, liberty and justice. So first and the most important article is fundamental rights, the right to equality. It's these article this fundamental rights is written in articles 14 to 18. In this according to this fundamental right, the Indian constitution guaranteed equality to offer to all before the law. The state could not discriminate a citizen on the basis of their of religion, caste or place of birth. Untouchability is abolished and is considered punishable by law. There is a provision of reservation for scheduled caste and scheduled tribes. Laws are also made by the constitution to ensure equal treatment to all citizens. कुल मिलाकर हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें सभी को एक जैसा अधिकार मिला है, सभी को एक जैसे अधिकार है. इन फ्रंट ऑफ द लॉ एवरीवन इज इक्वल. सरकार किसी के साथ में भी किसी भी कोई भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती है. ठीक है, चाहे वो उसका का स्किन कलर है, चाहे उसका कोई सिक्स के रिलीजन हो, चाहे उसका कास्ट हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी बेस पर भी किसी से भी वो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है. ये आर्टिकल इन इस फंडामेंटल राइट में आता है. इसके अलावा राइट टू फ्रीडम इज़ गिवन द आर्ट इट और ये है आर्टिकल्स 19 से लेके 22 के बीच में है. द फंडामेंटल गारंटी 6 बेसिक फ्रीडम्स टू इंडियन सिटीजन. These 6 freedoms are: number one, freedom of speech and expression; number two, freedom of assemble peaceful without arms; number three, freedom of form association and unions; number four, freedom of to move freely throughout the country; five, freedom of reside and settle in any part of the country; six, freedom to practice any profession or to
कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये 6 हमें फ्रीडम्स दी गई हैं, आज़ादियाँ दी गई हैं, जो ये 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, जिसमें सबसे है कि भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम अपने दिल की बात किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हम अपनी उसके बाद में हम कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना आर्म्स के, बिना गोला बारूद के, हम किसी भी कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। ये हमें आज़ादी है। इसके साथ में एक और आज़ादी हमें दिया गया है कि हम यूनियन बना सकते हैं, अपनी एसोसिएशंस बना सकते हैं। एंड ये हमें फ्रीडम मिली हुई है कि ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी यूनियन या फिर कोई भी ग्रुप बनाने के लिए। इसके अलावा हमें फ्रीडम मिली है कि भी हम कंट्री के में कहीं पर भी घूम सकते हैं, और इसके साथ साथ हम किसी भी कंट्री के किसी भी भाग में, इंडिया में किसी भी भाग में, किसी भी स्टेट में जाकर हम वहाँ पर रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। हमें कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेयर एज सिक्स्थ फ्रीडम जो हमको मिली है, हम कोई भी प्रोफेशन अपनी मर्ज़ी का चुन सकते हैं और उस प्रोफेशन या फिर जॉब को हम परस्यू कर सकते हैं। ये हमें आज़ादी दी गई। गवर्नमेंट इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती कि भी आप ये जॉब कर सकते हैं और या ये जॉब नहीं कर सकते। तो ये फ्रीडम्स हमको मिली हुई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। द According to this right, the dignity of individual is recognized and the protect against any type of exploitation by Indian Constitution. Trafficking of inhuman beings, begging, and forced labor are prohibited by law. The Indian Constitution also prohibited children below the age of 14 to work in a factory and to evolve in dangerous work. सो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है जहाँ पर आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे काम करवाया जाए। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत ध्यान रखा गया है, और उसमें ये कहा गया है कि हम किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। भीख मंगवाना एंड फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाने को कहना, ये सब कुछ गैर कानूनी माना गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि भी 14 साल से छोटे उम्र के बच्चों को ना तो फैक्ट्री में और ऐसी जगह पर जहाँ पर उनकी जान को खतरा हो वहाँ पे काम करने का अधिकार नहीं है। ये इन गैर कानूनी माना जाता है। इसके बाद का राइट आता है राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू फ्रीडम और टू ऑफ रिलीजन, अकॉर्डिंग टू which all religions are equal before the state. All citizens are given the right to practice and propagate the religion they desire. तो यहाँ पर हमें धार्मिक आज़ादी दी गई है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म के बारे में हम अपना प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद में आता है करंट नेक्स्ट राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू minorities. The Indian people have the right to conserve their script, language and culture. Admission to any educational institution shall not be denied on the ground of religion, caste and creed. Every section has the right to establish and administer educational institution of his or her choice. सो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट का मतलब है कि भी किसी सबको अपना कल्चर को सेव करने का अधिकार है, उसको बचाने का अधिकार है। उसके साथ साथ चाहे एजुकेशन का भी सभी को अधिकार है। कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी का जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसको पसंद है तो उस इंस्टीट्यूशन में जाकर वो जो एजुकेशन ले सकता है। यहाँ पर किसी को से कोई स्पेशल कोई मना नहीं कर सकता है आपको। ये हमें इस फंडामेंटल राइट में अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 to 35। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन लीगल सेक्शन टू द सिटीजन also given the right to judicial remedies to in case of any infringement. In order to enforce this, a special right called the right to constitutional remedies has been included in the Indian Constitution. By this right,
Citizens are entitled to move the court in case they are denied a right. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जिसमें हमें ये मिला है कि अगर हमें महसूस होता है कि गवर्नमेंट हमारे कोई कोई भी फंडामेंटल राइट को मतलब कि को बांध रही है या उसको मानने से इनकार कर रही है, तो हमें जुडिशरी में हम जा सकते हैं, कोर्ट में हम जा सकते हैं एंड उसके अगेंस्ट हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। ये हमें आज़ादी मिली हुई है इस कॉन्स्टिट्यूशन राइट के हिसाब से। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है। इसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल लेटेस्ट फंडामेंटल राइट है। ये 2005 में 12 अक्टूबर 2005 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और इसको लागू किया गया था। अकॉर्डिंग टू डैट कि भी हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं इन राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट के हिसाब से। So these are the 6 fundamental rights provided in our constitution. So in next lecture we are going to read about the fundamental duties. एक और है इसमें ये जो right to property was deleted from the fundamental rights by the 44th amendment passed in the 1978. राइट टू प्रॉपर्टी एक अधिकार दिया गया था कि भी आप कभी कहीं पर भी अपनी ज़मीन खरीद सकते हो, ज़मीन को आपका अधिकार होगा। ये जो फंडामेंटल राइट है इसको 1978 में 44 अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। तो 44 अमेंडमेंट के द्वारा ये राइट को अबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। सो these are the 6 fundamental rights जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं और हमें ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।